Hello, student. Today we are going to start our new chapter. The chapter name is How I Have Suffered, which is written by Carol Graffa. This chapter is about this maid who is working in this woman's house. She is from Germany and she don't know about English, but still she speak her tutti frutti English, okay, and she spent her whole life as a servant in this woman's home. And this story is about this woman's dedication and how she occupy her place in the master's home. This is all about that. So let's start with the story. Mata was our housekeeper. Okay. So what is meant by housekeeper? Housekeeper is a maid. Okay. Means who do the household works, जिसे हम काम वाली बाई भी बोलते हैं. Okay. She was an ordinary woman to whom no one gave a second glance. It means that she was looking very ordinary. That once we see, no one want to see her again. Okay, if someone is very beautiful, we again and again see that person. No, but here, what author want to tell us that lady was so ordinary. She was not well looked or a beautiful kind of, but she was very ordinary woman. She came to work for us on one ordinary day. It was so ordinary that no one in my family remembered the day at all. That means that author is telling that woman came to their home for work, and it was so ordinary that day nothing was special, or in that lady also nothing was special, so no one remember that day when she joined us, isn't it? Over the year, however, we learned that she was far from ordinary. She was different than most of people in several different ways, and the impact that she left behind on my family was also quite extraordinary. Say, still now, that author was telling that lady was very ordinary and no one gave the second glance to her. But after some day, she come to know that she was not an ordinary. She make a special place in everyone's heart, and that's why she was an extraordinary person for her family. She was different than others. Now let's see how she is different than others. Okay, so let's see the next paragraph. We did not know, of course, any of this on that day when she arrived. It was a day that would make a huge difference to our lives in the years to come. It is an irony that we have no recollection of that day. Now, here two hard words came, that is the irony and recollection. So, let's see what is the meaning of that. So, here is the meaning. What is meant by irony? Irony means an unusual or unexpected part of a situation, etc., that seems strange or amused. It means that you can say irony means what? Something amusing, isn't it? And recollection means remember of something from the distant part. It means जब हम कुछ कोई चीज़ past में recall करते, मतलब past की कोई चीज़ when we recall, that is known as the recollection. And what is meant by irony? Irony is the amusing, something extraordinary. Okay, so let's see now. Okay, so what does here? It is an irony that we have no recollection of that day. इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही अमेजिंग थिंग है. दैट मीन्स समथिंग, क्या बोलेंगे, इट इज़ समथिंग स्ट्रेंज कि हमें उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं. इजंट इट? मतलब जो लेडी जो ऑथर के लाइफ में इतना इतना चेंजेस लेके आई है, एंड शी वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओके, शी मेड अ स्पेशल प्लेस इन एवरी वंस हार्ट, एंड शी जस्ट चेंज द लाइफ of when she came to that master's home. Then she simply changed the life. Okay,
but authors telling that she was so ordinary that we didn't notice, and it's really strange that कि वो जिस दिन आई, हमें हमें ज्वाइन हुई, उस दिन को हमने याद भी नहीं रखा या हमें याद भी नहीं रहा, जबकि उनका हमारे लाइफ में इतना बड़ा क्या है, योगदान है. Okay, so this is what the meaning of this sentence. Now, I was not even born when she came to live with us. She went on to become an omnipresent being in our lives, so much so that I cannot think of my childhood without thinking of Meta. Okay, यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि when Meta joined to author's home, at that time author was not even born. Okay, and what is the meaning of omnipresent? Omnipresent means something or someone who is present everywhere. It means at the beginning only we tell दैट कि वो जो लेडी है जैसे घर में आई, उसने अपनी एक जगह बना ली और सबके लाइफ पे इस उनका क्या था, एक तरीके की छाप थी, इजंट इट. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो जब हमारे घर में आए तो उस टाइम पे तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन मैं मेरा चाइल्डहुड जो है वो उनके बगैर सोच भी नहीं सकती हूँ. शी वॉज एन omni प्रेजेंट. इसका मतलब है कि वो हर जगह पे थे. शी वॉज एवरीवेयर. Okay, she is a part of our life, so I can't even imagine my childhood without her. So this is what the meaning of this passage. Okay, so let's move the next passage. I am now a married woman with a family and home of my own. I have still not experienced a day when I do not think of her. She was so much a part of our family that in our neighborhoods we were simply known as the family who had Meta. Everyone knew, everyone knew her. She could not be ignored. See, what is the meaning of this paragraph? Now the author is married. Okay, now she is telling that now I am a married, I have my own family. Okay, बट आई स्टिल नॉट एक्सपीरियंस एनी डे. लेकिन मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं मेटा के बारे में नहीं सोचती होंगी. शी वॉज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई थी और उसको हर कोई जानता था और उसको इग्नोर करना इट वॉज सिंपली इम्पॉसिबल. Okay, student, so I think by this paragraph you understand the importance of Meta in the author's family. Okay, so now let's move the next paragraph. So student, you can observe here, this picture, in this picture what the lady you are looking, this is the Meta. Okay, and this girl is a author and this little boy is her brother. Okay, so now let's move to the next topic, that is Meta was a skinny woman. You can see here what is the meaning of skinny. Skinny is the very thin. Okay, so you can observe the picture and you will realize that Meta is simply very skinny. See her how she is not very beautiful or something very special. She looks very ordinary. Okay, she is a skinny woman, hardly lovable, who terrified my brother and me right from the day one. Okay, और यहाँ पे क्या बोला है कि वो कोई ऐसी लवेबल वगैरह नहीं थी. ओके, एंड शी वॉज टेरिफाइड. वो मुझे और मेरे भाई को हमेशा क्या करती थी, डराती थी. पहले दिन से ही शी स्टार्ट टू टेरिफाइड अस. मतलब उनको ऐसे क्या रखती थी, ऐसे एकदम क्या बोलते उसको, कंट्रोल में रखती थी. ओके, she was a thin as a reed and had a stern face. Okay, उन्होंने कहा रीड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीड. रीड इज़ अ ग्रास के जैसे ऐसे ऊंचा वाला लंबा वाला बहुत बड़ा हुआ जो ग्रास होता है, पतला पतला सा, तो उसके जैसे. मतलब देखो ये ऊंची है, लंबी है और ग्रास के जैसी है. मतलब नॉट ग्रास के जैसे, बट उन्होंने बोला है कि शी इज़ लुक लाइक अ रीड. ओके, और उसका फेस जो है देखो कैसे चपटा सा है. ओके, स्टर्न फेस, दैट मीन्स चपटा सा फेस. To me, she always seemed like an old and shriveled up flower. Okay, ऑथर कहती है कि मुझे हमेशा लगता था कि वो बहुत ही बूढ़ी है और जो मुरझाया हुआ फ्लावर होता है ना उसके जैसे वो है, ऐसे वो सोचती थी. ओके, नाउ हियर आर 3 words came, that is the difficult words came. So let's see what is the meaning of that. So students, see here the meaning. The first word is reed. What is the meaning of reed? Reed is a tall, slender,
लिफ्ट प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली. ओके, दैट मीन्स टॉल मतलब ऊंचा, स्लेंडर बोले तो पतला, ऐसा जो एक ग्रास की फैमिली में का एक प्लांट है, तो उसकी इन्होंने क्या दी है इसको, मतलब उसका इन्होंने उनको उपाधि दी है, जैसे कि उस तरीके से दिखती है. ओके, देन श्रीवेल्ड मीन्स ड्राइड अप, मुरझाया हुआ, सूखा हुआ. ओके, देन accent means that accent word still to come. But what is the meaning of accent? Accent is influenced by a particular accent. Okay, now let's see the next topic. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि शी वॉज वेरी स्किनी एंड शी वॉज नॉट लवेबल एट ऑल, एंड फ्रॉम द डे फर्स्ट शी वॉज शी यूज टू टेरिफाइड द ऑथर एंड ऑथर्स ब्रदर. ओके, शी वॉज एज थिन एज रीड, मतलब वो इतनी दुबली थी कि वो एक ऐसे पतले से ग्रास के जैसी लगती थी. ओके, टू मी शी ऑलवेज सीम लाइक अ ओल्ड एंड श्रिवेल्ड अ फ्लावर. मुझे तो हमेशा लगता था वो कि कितनी बूढ़ी है और वो मुरझाया हुआ सा फ्लावर के जैसी लगती थी. ओके, then she would forever keep on reminding us that she had once been a beautiful girl. ओके, वो हमेशा हमें रिमाइंड करा के देती थी कि मैं एक ज़माने में काफ़ी सुंदर लड़की थी. ओके, लाइक दिस, हर ब्लू आईज वर शार्प एंड शी हैड अ ट्रेडमार्क बन that gave her face a look of seriousness. ओके, तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है कि उसकी आंखें कैसी थी, उसकी आंखें थी ब्लू आंखें थी, और वो हमेशा बन बोले तो जूड़ा बांध के रहती थी, एंड इट वाज अ ट्रेडमार्क ऑफ हर पर्सनैलिटी, एंड दैट वाज गिविंग हर अ सीरियस लुक. ओके, मीन्स वेरी, अगर हम अच्छे से बाल बनाते हैं, जूड़ा वूड़ा लगाते हैं, तो कैसे एकदम सीरियस टच में आते हैं ना. सो लाइक दैट शी इज़ टेलिंग दैट द बन वॉज अ ट्रेडमार्क ऑफ हर एंड इट वॉज गिविंग हर अ सीरियस लुक. ओके, आई डिड नॉट नो मच अबाउट हर पास्ट. ओके, मतलब उसके पास्ट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है. द फ्यू थिंग्स दैट आई न्यू मेड मी क्यूरियस अबाउट हर. She had migrated from Germany in the year 1920s. She was alone, though she did talk about nephews and nieces back home. As long as she lived with us, no relative ever visited her. Okay, so author is telling, what author is telling कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है. I don't know much about her. Just I know her one thing that she was migrated from the Germany, मतलब वो जर्मनी से आई थी in the year 1920. एंड शी वॉज अलोन, और वो अकेली थी, लेकिन वो हमेशा अपने नेफ्यू और नीस के बारे में बात करती रहती थी. लेकिन जब तक वो हमारे साथ थी, एज लॉन्ग एज शी लिव्ड विद आस, नो रिलेटिव एवर विजिटेड टू हर. मतलब कोई भी रिलेटिव तब तक तो कोई मिलने के लिए नहीं आया था. हर इंग्लिश वॉज पुअर, उसकी इंग्लिश क्या थी, बहुत पुअर थी. एंड हेवीली एक्सेंटेड, एंड हेवीली एक्सेंटेड का मतलब वेन एवर शी वॉज इंग्लिश बोलती थी तो उसके इंग्लिश पे जर्मन लैंग्वेज का एक प्रभाव दिखता था. जैसे कि हम देखते हैं ना कि साउथ इंडियंस जब इंग्लिश बोलते तो कैसे बोलते, साउथ इंडियन लैंग्वेज का एक प्रभाव दिखता है. जैसे कि आई डोंट नो what you are saying, my mind is not working, why you are saying like this. मैंने जो अभी बोला है, डू यू थिंक दैट आई एम स्पीकिंग नॉर्मली? नो, यू आर फीलिंग सम एक्सेंट अफेक्ट. नो, एक्सेंटेड लग रहा है ना आपको. सो इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब यहाँ पे साउथ इंडियन टच लगा ना, तो वैसे ही जब वो बात करती थी तो जर्मन टच लगता था. वी ऑफन जोक्ड अबाउट हर इंग्लिश, मतलब उसका एक्सेंट ऐसा था कि ऑथर एंड ऑथर का ब्रदर हमेशा उसका क्या करते थे, जोक बनाते थे. माई ब्रदर एडविन मिमिक्ड हर स्पीकिंग स्टाइल. दिस इरेटेड हर टू नो एंड. ओके, और उनका ये जो हमारे ऑथर है, ऑथर के ब्रदर का नाम क्या है, एडविन. और एडविन हमेशा उसके, वो जिस तरीके से बोलती थी ना, तो उसका मिमिक्री किया करता था. और वो मिमिक्री की वजह से जो मेटा है इतनी ज़्यादा खफा हो जाती थी कि जिसका कोई एंड नहीं था. गॉट स्टूडेंट, शी ऑफन कंप्लेंट अबाउट अ वैरायटी ऑफ थिंग्स. You both have made me ugly and thin. Edward, you trouble me and my bones have become hollow. Okay, the flesh has disappeared from my skin. Ouch!
how I have suffered her. Month after month, year after year, she explained, and this continued for 34 years long. Okay, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो हमेशा कंप्लेंट करती रहती थी, बिकॉज दिस वेयर द किड्स नो. अब ये बच्चे क्या थे, बड़े शरारती थे, उनको परेशान करते थे, इसलिए ये जो हमारी मेटा थी वो क्या करती थी, हमेशा इनको डरा के रखती थी. ओके, और वो हमेशा कंप्लेंट करती थी कि मैं ये जो ऐसी दुबली पतली और ये ऐसी अगली सी बूढ़ी सी दिखने लगी हूँ ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, तुम्हारे वजह से दिखने लगी हूँ. एडवर्ड ने तो मुझे इतना ट्रबल किया, इतना परेशान किया है. मतलब वो जो बंदा था, भाई था ऑथर का, वो तो बहुत ही बदमाश था. तो वो बोलती थी हमेशा कि मैं जो ये दुबली पतली हुई ना, ये तुम दोनों के वजह से हुई हूँ. और ये जो एडवर्ड है ना, ये एडवर्ड तो इतना बदमाश है कि इसके वजह से मेरे जो बोन्स है पूरे क्या हो गए, पूरे खोखले हो गए हैं. मेरा मांस पूरा डिसअपियर होने लग गया. मैं पूरी कैसे हो गई हूँ, एकदम थीन हो गई हूँ. ठीक है, इस तरीके से वो कहती थी. और कहती थी आउच, मैं हाउ आई हैव सफ़र्ड हियर. और वो हमेशा बोलती थी, है भगवान, मैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ. ओके, और ये जो उसकी कंप्लेंट थी वो हमेशा ऐसी ही चलती रही, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर. और ये जो कंप्लेंट थी हमेशा यही बोला करती थी. और ये कितने सालों तक चला, 34 ईयर्स तक यही कैसेट उसकी चलती रही. ओके, नाउ she often she would often falsely threaten us about leaving. Okay, Edward, if you don't finish your food, I am leaving. Edward, if you don't clean your desk after studying, आई विल लीव इमिडिएटली. ओके, तो इसका मतलब क्या है, वो हमेशा क्या करती थी, इन बच्चों को डराती थी, क्योंकि ये बच्चे थे बड़े बदमाश. तो वो हमेशा इनको घर छोड़ के जाने की धमकी दिया करती थी. वो हमेशा एडवर्ड को बोलती थी कि एडवर्ड, अगर तुमने अपना फूड ख़त्म नहीं किया तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ. और एडवर्ड, अगर तुमने अपना डेस्क बोले तो पढ़ाई वगैरह हम जहाँ पे करते हैं, तो वो जो डेस्क होता है, वो स्टडीज़ डेस्क अगर साफ़ नहीं किया तो मैं इमीडिएटली अभी घर छोड़ के जा रही हूँ. इस तरीके से वो हमेशा क्या करती थी, उन्हें धमकियाँ दिया करती थी. ओके, सो सी नेक्स्ट, अभी क्या हुआ है. From the age of 4 till the time I was in my late 20s, we always heard her talk about Germany. मतलब ऑथर बोल रही है कि जब मैं 4 साल की थी तब से लेके जब मैं अभी 20 साल की हो गई हूँ, तब तक मैंने मतलब इतने सालों में मैंने हमेशा सुना है कि वो अपने जर्मनी के बारे में बोलती रहती है. Germany is so good. The air is clean and fresh. There are so many gardens. Even the weather is wonderful there. There is no place in this world like the Germany. We spend a good deal of our childhood listening to the praise of Germany. ओके, यहाँ पे ऑथर क्या बता रही है कि भाई मैं जब छोटी थी, 4 साल की थी, तब से लेके मैं 20 साल की जब तक हुई, तब तक मैं मतलब तब तक मैंने यही सुना है. मतलब मेटा के मुंह से जर्मनी की तारीफ़ ही सुनी है. मेटा हमेशा कहती थी कि जर्मनी बहुत अच्छा है, जर्मनी का वेदर बहुत अच्छा है, जर्मनी में बहुत सारे गार्डन्स है, और जर्मनी में क्या है, जर्मनी जैसा दुनिया में कोई दूसरा प्लेस नहीं है. और जर्मनी के बारे में बहुत कुछ वो बताती थी. तो ऑथर ने कहा कि हमारे चाइल्डहुड में हमने जर्मनी की प्रेज़ भरी कहानियाँ बहुत सुनी हैं. ओके, मतलब हमारा पूरा बचपन जर्मनी की ये जो प्रेजिंग है ये सुनने में ही बीत गया. Then came a phase when she would mention Germany and leaving us at the same time. I am getting too old to work. I am planning to leave this April, said Meta. April would turn to July and then October. Then October arrived. She would decide to stay on until January. Then it would be back to April again. We could never understand her. The reason for postponing her departure were always flimsy. Okay, April is very cold in Germany, July is very hot, at New Year there is too much snow. This cycle repeated after year, and 40 long years passed by. In jiffy we got used to her talk. Okay, यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहले तो वो
क्या बोलती थी कि मैं, अगर तुमने ये वर्क नहीं किया तो मैं घर छोड़ के जाऊंगी, अगर तुमने वो वर्क नहीं किया तो मैं घर छोड़ के जाऊंगी, इस तरीके का थ्रेटनिंग देती थी। उसके बाद एक वो भी फेज़ आया, मतलब उसके बाद ऑथर ने बताया कि मेरा जो बचपन है वो हमेशा जर्मनी की प्रेजिंग सुनने में बीता है। उसके बाद एक वो भी फेज़ आया कि वो अब हमें छोड़ने की, और जर्मनी और छोड़ने, ये दोनों भी थ्रेट एक साथ देने लगी कि भाई अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे से काम नहीं होता, अब मैं ये छोड़ के, काम छोड़ के चली जाऊँगी जर्मनी हमेशा के लिए, इस तरीके से। और वो हमेशा बोलती थी कि अब कमीन अप्रैल में मैं जाऊँगी, अप्रैल आने के बाद बोलती थी मैं जुलाई में जाऊँगी, जुलाई आने के बाद बोलती थी कि मैं अक्टूबर में जाऊँगी, अक्टूबर आता था तो बोलती थी कि मैं अभी नए साल में जाऊँगी, फिर नया साल आता था तो बोलती थी कि अरे नए साल में तो वहाँ पे जर्मनी में बहुत स्नो रहता। फिर वो होने के बाद फिर बोलती थी कि भाई अब मैं और बाद में जाऊंगी, तो फिर बाद में बोलती थी कि वहाँ पे जुलाई में जाऊंगी, तो जुलाई में तो बहुत हॉट रहता। और इसी तरीके से उसकी ये जो साइकिल थी शुरू रहती थी। और ऑथर समझ नहीं पाई कभी कि भाई वो हमेशा जर्मनी जाने का जो अपना प्लान था इस तरीके से पोस्टपोन क्यों करती रहती थी। ओके, सो स्टूडेंट, हियर सम वर्ड्स केम. Okay, so let's see what is the meaning of these words. Okay, so student, here two words came, that is the flimsy and in a jiffy. Okay, so what is the meaning of flimsy? Flimsy mean in a subsequent or a week. Okay, मतलब her she was just saying that I'm going, but she was not, you know, ऐसा कुछ determinant नहीं था कि वो जाएंगी ही करके. She was simply saying, and all the peoples were used to hear this, because 40 सालों से वो यही बोलती थी कि अभी मैं जा रही वगैरह. ओके, एंड इन जर्फी मीन्स व्हाट? इन अ मोमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन अ जर्फी? जर्फी मीन्स इन अ मोमेंट. ओके, सो नाउ one mystery that we could never solve, how Meta managed to converse with my mother. Okay, उन्होंने कहा कि हम एक मिस्ट्री कभी नहीं समझ पाए कि ये मेटा मेरे मम्मी के साथ इतनी बातें कैसे कर सकती थी. यू सी दिस पिक्चर एंड हियर दिस लेडी इज़ द मदर ऑफ आवर ऑथर. ओके, एंड यू सी बोथ आर टॉकिंग नाइसली. सो क्योंकि पहले ही बोला गया है कि मेटा का इंग्लिश अच्छा नहीं था. ओके, सो उन्हें वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि भाई मम्मी के साथ कैसे क्या ये इतनी अच्छे से बातें कर लेती है व्हेन हर इंग्लिश इज़ नॉट गुड. ओके, माई मदर इज़ अ स्पेनियार्ड. मतलब एक्चुअली जो हमारी लेखिका जो है वो कहाँ से है? स्पेन से है. और जो हमारी मेड है वो जर्मनी से है. ओके, एंड मदर जो थी, मदर की भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और वो स्पेनिश में बात करती थी, और ये इनकी जर्मन इन्फ्लुएंट थी. ओके, सो दोनों की भी इंग्लिश टूटी फूटी, तो दोनों भी मस्त अपना क्या करते थे? कम्युनिकेशन करते थे. ओके, माई मदर स्पेनियर्ड हैड इक्वली बैड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, इफ नॉट वर्स. Edward and I endlessly joked about her English. She would be embarrassed at time, but still we continue. Okay, यहाँ पे क्या बोला है कि मम्मी की इंग्लिश इतनी गंदी थी कि मैं और एडवर्ड हमेशा मम्मी की इंग्लिश का क्या करते थे? मजाक उड़ाया करते थे. मम्मी को बुरा भी लगता था, लेकिन हम बच्चे मानते नहीं थे, हम बस मजाक उड़ाया करते थे. ओके, एक बार क्या हुआ? वंस मेटा वॉज अराउंड व्हेन एडवर्ड एंड आई वेयर टीजिंग मदर. एक बार क्या हुआ? वहाँ पे मेटा खड़ी थी जब मैं और एडवर्ड मम्मी के इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे थे, मम्मी को चिढ़ा रहे थे. Edward and I were teasing mother about something that she had said. I earned a severe tongue lashing from Meta that day. Meta scolded me saying समथिंग. ओके, तो यहाँ पे देखो कि उस दिन मेटा आजू बाजू में थी और मेटा ने सुना कि ये बच्चे अपनी मम्मी को क्या कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे. और उस दिन मेटा ने जो क्लास ली बच्चों की, तो वो तो बस मतलब कभी भी ना भूलने लायक क्लास थी. ओके, सो यहाँ तक आज का टॉपिक यहाँ तक ख़त्म करते हैं. टुमारो आई विल सेंड यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो टिल देन स्टूडेंट, you have to read this chapter, means the portion how much I took today.
till that portion you have to read and you have to learn these hard words. Okay, I'll take a short test tomorrow on you, and you have to answer me of that test. Okay, so bye bye, see you tomorrow.